اشیاء ضروریہ پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف اکبری منڈی تاجران کی ہڑتال۔ صدر اکبری منڈی عزیر اوان دیگر عہدیداران کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ہمارا مسئلہ دال چاولوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا ہے، صدر اکبری منڈی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید کہنا تھا کہ ہمارا مسئلہ شہر کی حد تک نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، ان اشیاء میں ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، صدر اکبری منڈی اظہر اقبال اوان کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ٹیکس دال چاولوں سے متعلق ہے اس ٹیکس کو ختم کیا جائے، اگر ہمارے احتجاج کے اثرات نیچے تک جائیں گے، صدر اکبری منڈی اظہر اقبال اوان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ مزید جانیں گے سعید احمد سعید سے، جگہ کیجیے گا۔ بجٹ کے اندر وفاقی حکومت کی طرف سے جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ کیا گیا تاجر برادری کے اوپر، خصوصی طور پر اشیاء خورنوش کے اوپر، تو اس کے خلاف پاکستان بھر کی طرح آج لاہور کی جو اکبری منڈی کے تاجران ہیں وہ بھی مکمل احتجاج ہے وہ کر رہے ہیں۔ مکمل طور پر لاہور کی اکبری منڈی جو کہ بڑی منڈی ہے اشیاء خورنوش کی ترسیل کے لیے لاہور سمیت ملک کے دیگر حصوں میں، تو وہ آج صبح سے ہی بند ہے۔ صدر مرکزی موجود سے بات کریں گے۔ جی اظہر صاحب، کیا کہیں گے؟ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ ورک بھی لا رہے ہیں، ٹیکس لیں گے تاجروں سے، تاجر برادری کیا ٹیکس نہیں دینا چاہتی جو احتجاج کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کس چیز پہ ٹیکس نہیں دے رہے، پہلے تو یہ بتائیں۔ بچوں کا پیمپر سے لے کے ٹیلی فون کے کارڈ تک جو بھی چیز آپ لیں، بچوں کا دودھ لیں، ہر چیز پہ ٹیکس ہے۔ یہ بات تو غلط ہے، کوئی ٹیکس نہیں دیتا، ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، تو کم از کم دال چاول تو رہنے دیں گے جو کوئی استعمال کر سکے۔ جی بالکل، تاجر برادری یہ کہنا ہے کہ ٹیکس تو آلریڈی دے رہے ہیں، لیکن اس ٹیکس سے جو افیکٹی ہوں گے، اثرات ہوں گے، وہ عام شہری کے اوپر ہوں گے، کیونکہ دال چاول روٹی جو ہے یہ عام آدمی کی خوراک ہے۔ اب مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ 6 اگست کو ان کے ہونے والے جو مرکزی اجلاس ہے اس میں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سعید احمد سعید تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی بات کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے بڑے فیصلے کی، تو بلدیاتی انتخابات سے پہلے حکومت کی حکمت عملی بلدیاتی اداروں کے لیے اسپیشل گرانٹس کا حجم 37% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ بجٹ میں اضافے سے بلدیاتی سطح کی اسکیموں کی تکمیل بھی آسان ہوگی۔ اس سے قبل بلدیاتی اسکیموں پر اسپیشل گرانٹ کا حجم 12.8% تھا۔ علی رامے ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی علی رامے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات سے قبل ایک نئی حکمت عملی شعبہ تیار کیا، اور یہ کہ اسپیشل گرانٹس جو ہیں وہ اربن جو میونسپل کونسلز کے لیے پلان کی جاتی ہیں، اس کا حجم جو ہے وہ 12.8% سے 37% تک جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب کو بھی ہدایت جاری کی کہ نئے مالی سال کا بجٹ جو ہے وہ جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں، ان کو نئے پی ایف سی شیئر جو کہ نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا، تاکہ وہاں پر جتنے بھی بلدیاتی سطح پر جو اسکیمیں ہیں عوامی نمائندوں کی وہ مکمل کی جا سکیں۔ اب اس میں اسٹریٹ لائٹس ہے، سیوریج کے نکاسیات ہے، میونسپل جو روڈ جو میونسپل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں ان کی تکمیل جو ہے وہ ہو سکے گی۔ اور اس کے لیے اب فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پر پاپولیشن بیس پہ جو ہے فارمولا طے تھا، اور اس کے ساتھ ہی اب اسپیشل گرانٹ کے تحت پی ایف سی شیئر سے جاری کیا جاتا ہے، وہ 37% تک بجٹ جو ہے وہ ریلیز کرے گا، اور اس سے بجٹ کا حجم بھی پڑے گا، اور وہاں پہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے، جو گلی محلوں کے کام ہوں گے، وہ مکمل کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ علی رامے ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ محمود بوٹی شاد باغ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ روڈا کے حوالے۔ واسا نے پنجاب کابینہ کی منظوری سے 6 سال بعد منصوبہ حوالے کیا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے کا فیصلہ 2018 میں کیا گیا تھا۔ واسا نے 245 ایکڑ کینال 9 مرلے اراضی پر سیکشن 4 لگایا تھا۔ مزید جانیں گے درے نیاب سے، جگہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ منصوبہ 2018 میں شروع کیا گیا تھا، اور محمود بوٹی شاد باغ کے 3 موضع پہ 2018 سے سیکشن 4 کا نفاذ کیا گیا تھا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پاسا کی ابتدائی ذمہ داری تھی، لیکن اس کے بعد 2021 میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ روڈا کا ایریا اور روڈا کے جوڈیشن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ روڈا کام کرے گا، اور روڈا ہی اس میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گا۔ تب سے لے کے اب تک معاملہ التوا کا شکار تھا۔ گزشتہ روز کابینہ میں واسا نے یہ منظوری کے لیے پیش کیا تھا کہ اس کی 245 ایکڑ 1 کنال اور 9 مرلے اراضی کی لینڈ ایکوزیشن کا معاملہ روڈا کو دیا جائے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، جس پہ کابینہ نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا ہے، اور یہ پروجیکٹ اور اس کی لینڈ ایکوزیشن کے تمام مراحل جو ہیں وہ روڈا کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں جو بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں، لینڈ ایکوزیشن کے مسائل ہیں، وہ روڈا ہی اس کو حل کرے گا، اور 245 کے بجائے 275 ایکڑ اراضی ایکوائر کرے گا۔ جی درے نیاب، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ سیکیورٹی معاملات اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اہم فیصلہ۔
सिक्योरिटी मामला स्मगलिंग की रोकथाम के लिए AIG एंटी स्मगलिंग तैनात होगी। ऑपरेशंस ब्रांच ने AIG की तैनाती के IG पंजाब को दरखास्त दे दी है। ऑपरेशंस ब्रांच में AIG ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑपरेशनल मामला डील कर रहे हैं। AIG एंटी स्मगलिंग की तैनाती से मामला बेहतर तरीके से हल हो सकेंगे। AIG एंटी स्मगलिंग की सीट हुकूमत से मंजूर हो चुकी है। पुलिस हुक्काम की जानिब से ऐसा भी बताया गया है। नए AIG की तैनाती से वर्किंग बेहतर तरीके से डील हो सकेगी। तो सिक्योरिटी मामलात और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए यह अहम फैसला किया गया है। सिक्योरिटी मामलात और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए AIG एंटी स्मगलिंग तैनात होगी, जबकि ऑपरेशंस ब्रांच ने AIG की तैनाती के IG पंजाब को दरख्वास्त दे दी है और ऑपरेशन ब्रांच में AIG ऑपरेशन सिक्योरिटी और ऑपरेशन मामलात डील कर रहे हैं। हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि AIG एंटी स्मगलिंग की तैनाती से मामलात बेहतर तरीके से हल होंगे। AIG एंटी स्मगलिंग की सीट हुकूमत से मंजूर हो चुकी है। पुलिस हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। हुकूमत के मुफ्त इलाज की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में MRI CT स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद हो चुके हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के मरीज कंट्रास्ट इंजेक्शन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। गरीब मरीजों के लिए 7 से 8 हज़ार का कंट्रास्ट इंजेक्शन खरीदना नामुमकिन हो गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। मुफ्त इलाज फ्राहम करने का दावा धरा रह गया। लाहौर समेत पंजाब भर के जो सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं उनमें आने वाले मरीज़ों को जो MRI और CT स्कैन टेस्ट है उसके लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन दस्तयाब नहीं है। सरकारी अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से कुछ अर्सा कबल ये दावा किया गया था कि तमाम टीचिंग अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन जो है उसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बना दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बदस्तूर टीचिंग अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन जो है वो नापैद है, जिसकी वजह से न सिर्फ CT स्कैन बल्कि MRI को विद कंट्रास्ट टेस्ट करवाने वाले जो मरीज़ हैं जिनको डॉक्टर्स की जानिब से एडवाइस किया जाता है कि उनका जो है वो कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ जो है वो उनके जो है वो CT स्कैन या MRI होना चाहिए, लेकिन महकमा सेहत के हुकाम या फिर सरकारी टीचिंग अस्पतालों के जो सरबराहान हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जो मुफ्त इलाज की फराहमी के दावे हैं वो सिर्फ दावों की हदूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। पंजाब में नए मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के क़याम का मामला। नए प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के क़याम पर पाबंदी लगाने पर वर्किंग का आगाज़। स्टैंडिंग कमेटी कानून साज़ी और प्राइवेटाइजेशन के 7वें इजलास में मामला ज़ेर बहस आया। स्टैंडिंग कमेटी ने नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बनाने पर पाबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक भी किया। इस हवाले से बात करेंगे राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद, क्या अपडेट्स हैं? जी, पंजाब में नए मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के क़याम के हवाले से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत नए मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पर पाबंदी लगाने के हवाले से वर्किंग का आगाज़ कर चुकी है और बुनियादी तौर पर इस पर जो तजावीज़ हैं वो भी तैयार कर ली गई हैं। आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से सिफारिशात मुरतब की गई और ऐवान वज़ीर आला को नए मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के क़याम के हवाले से समरी भी अरसाल की गई थी। ताहम पंजाब ऐवान वज़ीर आला ने ये मामला जो है वो स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून साजी व प्राइवेटाइजेशन के पास भेजा, इस पर जो है वो 7वें इजलास में मामला ज़ेरे बहस लाया गया। तो मुतअद्दिद जो मेंबर्स थे उनकी जानिब से इत्तफाक किया गया कि वाकई पंजाब में नए मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए ये फैसला किया गया था कि इस पर ताहम फ़िलहाल तजावीज़ तैयार की गई हैं, सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं, जो कि पंजाब काबीना को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी तमाम तर जो सिफारिशात हैं वो पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी हैं, क्योंकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से ये समरी पहले ही मूव की जा चुकी है। राउदुलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब इलाकाई मसाइल की बात करें और आपको बताएं कि समनाबाद पक्की ठट्टी के मकीन सुई गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मुजाहिरीन की जानिब से सुई गैस के महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। 20 दिन से सुई गैस दस्तयाब नहीं, काम काज में मुश्किलात का सामना है, मुजाहिरीन की जानिब से बताया गया है। मज़ीद क्या मुतालबात हैं जानेंगे महर अली से। जी महर अली, बताइएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस ना आने का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त मैं समनाबाद के इलाके की ठट्टी में मौजूद हूँ, जहाँ
सुई गैस न आने के बाइस रहायशी सरापा एहतजाज हैं और उनकी जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इस हवाले से मेरे साथ रहायशी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी बताइएगा, कितने अरसे से सुई गैस दस्तयाब नहीं है और आपको किन मसाइल का सामना है? आज 8 दिन हो गए हैं, गैस नहीं आ रही, ना चूल्हा चल रहा है, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं, नाश्ते से परेशान है, खाना खाने से परेशान है और लोग बड़े परेशान हैं। बिल ज़्यादा आ रहे हैं और गैस नहीं आ रही। आज पूरा हफ्ता हो रहा है, वो जो फिक्स चार्जर है उनको ख़त्म किया जाए, आपकी मेहरबानी है। तो हम बहुत परेशान हैं और गैस जल्द अज जल्द बहाल की जाए। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार सुई गैस के महकमे को शिकायत दी लेकिन कोई भी रद्द अमल नहीं किया गया। मजीद मैं आपको बताऊं कि इनका कहना है कि हमारा हुकूमत पंजाब और मुतलका महकमे से मुतालबा है कि सुई गैस के मसले को इस इलाके में हल किया जाए ताकि घरेलू कामकाज में मुश्किलात का सामना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहर अली अकबर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वाटर सप्लाई सीवरेज के मंसूबे महकमा बल्दियात की जानिब से मंसूबों के लिए कॉन्सेप्ट पेपर तैयार कर लिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक के मिशन की स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गिल को मुजवजा मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे दुर्र नयाब से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वाटर सप्लाई और सीवेज मंसूबे के कॉन्सेप्ट पेपर तैयार कर लिए हैं। इस हवाले से वर्ल्ड बैंक के मिशन को स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल की जानिब से मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वर्ल्ड बैंक के तावन से मुख्तलिफ शहरों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। 60 लाख लोगों के लिए वाटर सीवेज सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया पंजाब एक्सक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम का आगाज जून 2025 में किया जाएगा। स्पेशल सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी गई है। वर्ल्ड बैंक की टीम का कहना था वाटर सप्लाई और सीवेज का मंसूबा 5 सालों में मुकम्मल होगा। पंजाब एक्सक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए कुल 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का तखमीना लगाया गया है। इस हवाले से साफ पानी की फराहमी, सीवरेज सिस्टम और पायलट लैंड फिल्म साइट की तैयारी के तमाम मंसूबे इसमें शामिल हैं। स्पेशल सेक्रेटरी का कहना था कि साफ पानी, सैनिटेशन, ग़िज़ाइयत की कमी जैसे मसाइल में तावन काबिल सत्ताइश है। इस इजलास में वर्ल्ड बैंक टीम के लीडर शहनाज अरशद और एमडी पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी सैयद जाहिद ने भी शिरकत की है। जी दुर्र नयाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियों की निजकारी करने का हतमी फैसला। वज़ारत पावर डिवीजन ने कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने का मुरासला जारी कर दिया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जगह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की तकसीम कार कंपनियों और जनरेशन कंपनीज की निजकारी करने का हतमी फैसला किया गया है। पावर डिवीजन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका मरासला जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि लेस्को समेत दीगर जो तकसीम कार कंपनियां हैं इनकी तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी और इस अमल को तेज किया जाए। ये वाज़ेह कर दूं कि चंद रोज़ कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की गई है और उसी बुनियाद पर यह की गई है कि निजकारी के अमल को मुकम्मल किया जाए। तो लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 रोज़ कबल अपना चार्ज संभाल लिया है, जिसके बाद अब निजकारी के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और लेस्को, गैपको, ISCO समेत दीगर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनकी निजकारी की जाएगी। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।